Hello, my dear students. Welcome back to Study with Vaishnavi Jha. In today's class, we will be discussing homologous series, and this will be the last topic for that part of the chapter which is selected by CBSE for your examinations, right? And the second part of the chapter will be uploaded, but later on. So first we will cover up the first part of the chapter, and after that I'll discuss the exercise and in-text questions based on this part only. Okay, so let's start. So homologous series, in this you can see a definition written here, but this is not the only part that you have to keep in mind. Okay, definition तो यहाँ है, but आपको कुछ पॉइंट्स इसके बारे में और भी ध्यान में रखने हैं. मैं आपको बताती हूँ होमोलोगस सीरीज बेसिकली होता क्या है. देखिए, होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या हुआ, जो एक ही सीरीज में आने वाले ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कि जो हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूट है वो सेम ही रहना चाहिए. समझ आ रही है बात? जैसे मैं आपको समझाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक प्रोपेनॉल, सपोज. ओके, प्रोपेनॉल. देन नेक्स्ट series should be butanol. Next series should be pentanol, hexanol. Now these have same substitute for hydrogen. इनके पास क्या है? ऑल ही है सेम सब्स्टिट्यूट. ये ऑल क्या डिनोट करता है? ये ऑल डिनोट करता है OH को, है ना? ये OH को डिनोट करता है. यानी कि जो आपके पास फंक्शनल ग्रुप यूज हो रहा है वो सेम है. द फंक्शनल ग्रुप दैट इज बीइंग यूज्ड इज सेम, राइट, फॉर ऑल ऑफ द कंपाउंड्स. And these compounds are what? Homologous series. Part of homologous series. Part of homologous series. Now there are certain more points that you have to keep in mind, and that will help you to identify the compounds coming in homologous series. Okay, and what are those key points? There is a difference of CH2, okay, between two compounds. Two compounds नहीं लिखो, लिखो two continuous compounds, right? Two continuous compound of a series. Got my point? क्या कह रहा है इसमें? That difference जो होगा दो compounds के बीच का, that should be CH2. Okay? और इसमें एक पॉइंट और आप ऐड कीजिए, फिर मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ. There is a difference of 14U again between two continuous compounds of series. So क्या होता है इसमें? 14U का जो है डिफरेंस होता है. एंड अंडरलाइन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, देखिए अब मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे आया. देखिए, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल लेके बताती हूँ. जैसे मान लीजिए कि प्रोपेन हम ले रहे हैं. सपोज वी आर टेकिंग प्रोपेन. ओके, सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन? इट इज C. If you write it like this, or you can write it like complete formula also, C3H8. Okay, how did I calculate it? I calculate it with the help of this general formula when we did alkenes and alkynes topic, right? वहां पे हमने ये formula देखा था. So since it is prop means n equal to 3, and if n equal to 3, then for n
we have to use this formula. H will be 2n plus 2, so 8. Okay, now next compound is what? It is butane. And what is the formula of butane? C4H10. Now see the difference between these two. What is the difference? यहाँ 3 कार्बन है and here it is 4 carbons, right? So 4 minus 3, 1 कार्बन का डिफरेंस है. यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 10 हाइड्रोजन है. So what is the difference between hydrogen? There is a difference of 2 hydrogens. So first point क्या आया था? There is a difference of CH2 between two continuous compound of a series. तो ये CH2 का डिफरेंस जो है ये हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, राइट. और दूसरी बात, ये CH2 का मास कितना होगा? मास अगर निकालेंगे तो कार्बन का मास 12 प्लस 2 हाइड्रोजन है तो मास 2, तो कितना हो गया? 14U. तो कितने के डिफरेंस पे है प्रोपेन और ब्यूटेन एक दूसरे से? 14U के डिफरेंस पे है. एंड दिस इज व्हाट इज नोन एज होमोलोगस सीरीज. आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसके बेस पर एक जो क्वेश्चन पेपर में आ भी सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो मैं वो आपको करवा देती हूँ. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट. Now see, in this question what you have to do, the question says identify the compound that does not come in the given homologous series. So you have to identify basically the wrong compound in this series, right? Given series. So for that, what is the key point that you have to use? So we studied basically 3 points. First thing is that there should be the same substitute in each and every compound. हर compound में same ही substitute जो है वो होना चाहिए. Then second part, what we saw that there is a difference of CH2, right? CH2 का जो है difference हमें दिखना चाहिए. And after that हमने पढ़ा that there should be a difference of 14U. 14U का difference जो है वो, तो हम क्या कर सकते हैं? सेम फंक्शनल ग्रुप तो हम देख ही रहे हैं यहाँ पे, करेक्ट, बट वो पॉइंट से हमें हेल्प नहीं मिलने वाली. सो वी आर गोइंग टू यूज दिस CH2 का डिफरेंस. इससे हमें इजीली आइडेंटिफाई हम कर पाएंगे वेदर कि इसमें कौन सा है जो कि आपका नॉट अ पार्ट ऑफ होमोलोगस सीरीज, राइट. सो लेट्स स्टार्ट. सो C2H4 and C3H6. See the difference between these two. 2 and 3, what is the difference of 1 carbon? 4 and 6, what is the difference? CH2, right. Similarly here C3C4 means 1C and H6H8 means 2 hydrogen. Similarly here C4 and C5, okay, it is what? It is 1 carbon. H8 and H12, it is 4 CH4. That means this compound is wrong. आपको लग रहा होगा अगर ये बीच में गलत है तो ये कंपाउंड भी तो गलत हो सकता है. नहीं हो सकता. Why? Because this compound is correct from left hand side. इधर की तरफ से ये सही सीरीज चल रही है, ठीक है. So that means इसी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, राइट. अब आप इसको चाहे तो कंफर्म करेंगे, आगे भी काउंट कर लो. C and H12 H0, अगेन इट्स नॉट कमिंग CH2. दैट मीन्स इन दोनों का कॉमन पॉइंट क्या है? ये तो ये गलत है. या नाउ हियर अगर कोई और कंपाउंड वाला होता तो हम उसको निकाल देते, कोई और फंक्शनल ग्रुप वाला. बट हियर एवरी इन ईच एंड एवरी कंपाउंड द फंक्शनल ग्रुप इज व्हाट? क्लोरीन ओनली. सो नाउ लेट अस चेक द डिफरेंस बाय CH2. C1 and C2, C and H3 and H5, what is the difference? H2, right. Now here 2 and 3, 1C. 5 and 7, difference of 2. Here difference of 1, difference of 0. Now this is wrong. This is wrong. That means this is correct because यहाँ से ये सीरीज सही चल रही है, यहाँ आके गड़बड़ हुई. इसका मतलब ये वाला जो है this is not a part of the homologous series, right. तो मेरे ख्याल से आप लोगों को होमोलोगस सीरीज का मतलब समझ में आ गया होगा. सी इसमें जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं, पॉसिबिलिटी जो बनती है,
एक तो आपका इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और एक ऐसा ही क्वेश्चन शायद एनसीईआरटी में भी होगा एक्सरसाइज में, दैट आई विल डिस्कस। एंड एक आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि होमोलोगस सीरीज को एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। इट मे कम फॉर 3 मार्क्स ऑल्सो, और इट मे कम फॉर 1 मार्क ऑल्सो, डेफिनेशन लाइक डिफाइन होमोलोगस सीरीज। तो मतलब इतने ही क्वेश्चन होमोलोगस सीरीज में से आपके बनते हैं। या फिर ऐसे भी हो सकता है दैट कोई 5 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया हो, उसका आपको एक पार्ट में ये देखने को मिल जाए। बिकॉज सी साइंस का जो एग्जाम होता है, अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो पहले तो मतलब बहुत पहले ऐसे था कि मतलब 3 नंबर का कोई एक क्वेश्चन पूछ लिया, 3 नंबर में उसको एक्सप्लेन करो। बट साइंस में अभी मतलब अभी तो बहुत ही ज़्यादा उसको लाइक फ्रेश कर दिया गया है, उसको बहुत ही ज़्यादा अपडेट कर दिया गया है तरीके को। एंड द अपडेटेड मेथड इज that if there is a question of 3 marks, they will ask you 3 questions, and by those 3 questions they will ask you the concept of different concepts of that particular chapter, right? So by one question they get to know more information that how much you have studied. So इसके लिए मैं आपसे कहूँगी कि आप जो है लंबे लंबे आंसर्स में फोकस नहीं करना है। आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि जो भी आप पेपर में कर रहे हैं, ठीक है, दैट शुड बी टू द पॉइंट। बिकॉज अगर 3 नंबर के क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं तो ऑब्वियसली वन मार्क ईच, हर किसी का एक एक मार्क का होगा, तो आपको 1 मार्क जितना ही लिखना है। अब पेपर में जैसे मान लो होमोलोगस सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, सो व्हाट वुड दे डू, फर्स्ट क्वेश्चन में दे वुड आस्क डिफाइन होमोलोगस सीरीज, सेकेंड क्वेश्चन में दे विल आस्क लाइक दिस क्वेश्चन आइडेंटिफाई करो। सो अब उनको पूरा आइडिया लग गया कि आपको होमोलोगस सीरीज की बारे में पूरा इंफॉर्मेशन है, कि आपको डेफिनेशन भी पता है, आपको उसका जो है आइडेंटिफिकेशन भी पता है। तो वो आपका एक टॉपिक जो है उनको समझा कि हाँ आपको क्लियर है। सो साइंस में पेपर पार्ट्स में पूछा जाता है, और इसीलिए साइंस का पेपर बहुत जल्दी छोटा छोटा भी होता है, बहुत जल्दी खत्म भी हो जाता है। तो इस कारण से आप लोग को थोड़ा सा मतलब बहुत ही मतलब माइन्यूटली आपको पढ़ना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि ऊपर ऊपर करके पढ़ लिया एंड यू विल राइट द आंसर, बिकॉज लेंथी क्वेश्चन तो आते नहीं है, बहुत ही पार्ट वाइज आते हैं, तो उसके हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। सो फॉर होमोलोगस सीरीज दिस इज इट, and in the next class I'll be discussing the in-text and exercise questions of this chapter, and till then take care. Thank you for your patient hearing. Bye bye.